ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਵਈਏ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਅਮਲੀ ਨਾ ਅਮਲ ਤਜਤ ਜਿਉ ધિਕਾਰ ਕੀਏ, ਦੋਖ ਦੁਖ ਲੋਕ ਵੈਦ ਸੁਨਤ ਛਕਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਰੁੱਲ ਜਾਏ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਭਾਵੇਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ, ਖਾਣ ਪਾਨ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਮਲੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਮਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮਤ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਕਰਮ ਬੇਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ। ਵਿਕਰਮ ਬੇਤਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪੂਰਤ ਵਹੀ ਮਰ ਜਾਏ ਜੋ ਕੁਲ ਕੋ ਦਾਗ ਲਗਾਵੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਤ ਵਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕੋ ਦਾਗ ਲਗਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਜ਼ਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਤ ਵਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏ ਜੋ ਕੁਲ ਕੋ ਦਾਗ ਲਗਾਵੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏ ਜੋ ਹਾਥ ਲੈ ਮਦਰਾ ਪਿਲਾਵੇ। ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸਦੇ ਮਦਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਹੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਾਗ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏ ਜੋ ਹਾਥ ਲੈ ਮਦਰਾ ਪਿਲਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਨਿਆਓ ਰਾਜਾ ਮਰੇ ਤਬੇ ਨਿਸਬਰ ਸੋਈਏ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਵੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਨਿਆਓ ਰਾਜਾ ਮਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਬੇ ਨਿਸਬਰ ਸੋਈਏ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਬੇਤਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਿਆਓ ਰਾਜਾ ਮਰੇ ਤਬੇ ਨਿਸਬਰ ਸੋਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਤਾਲ ਕਹੇ ਵਿਕਰਮ ਸੁਨੋ ਏਤੇ ਮਰੇ ਨਾ ਰੋਈਏ। ਬੇਤਾਲ ਕਹੇ ਵਿਕਰਮ ਸੁਨੋ ਏਤੇ ਮਰੇ ਨਾ ਰੋਈਏ। ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਮਰ ਜਾਣ, ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਿਆਓ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਬੇਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੇ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ, 4 ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾंस ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਕਿਧਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਮਾंस ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਮਾंस ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਤੇ ਤੂੰ शराब पीना में और इतनी पीना में। कहता वो बाहर के लिए कहा ना, अंदर के लिए थोड़ी कहा है। बाहर बूंद डिग जाए तो उन्होंने कट दो, असी बाहर डिगण ही नहीं देंगे, पी जाने असी सीधी अंदर।
मैं अर्ज करदा पिया कि कुछ ग्रंथां दे विच नशिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ भी तरह के नशे ਨੂੰ निंदा की गई है, क्योंकि कोई भी नशा होवे वो सुरत ਨੂੰ बेसुरत कर देंदा है। जो मनुख का अध्यात्मक मंडल है ना, वो सारा उसका खिंड जाता है। पद्म पुराण दे विच मैं पंक्तियां पढ़ियां सन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਕਲਪੰਤ ਏਕੰਚ 10 ਕਲਪੰਤ ਨਾਗਨੀ। ਬੀਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੰਗ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜਿਆ ਕਲਪੰਤ ਏਕੰਚ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਉਸ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 10 ਕਲਪੰਤ ਨਾਗਨੀ ਹਫੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਫੀਮ ਨੂੰ ਨਾਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਫੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਗਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। 10 ਕਲਪੰਤ ਨਾਗਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 10 ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ 'ਚ ਨੇ। 10 ਜਨਮ। ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਨਮ, ਜਿਹੜਾ ਹਫੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 10 ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਗੇ। 10 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ कि 10 जन्मां तक वो होश विच नहीं आ सकेगा, इतना पीछे चला जाएगा। तीसरी गल जो उसने की है, कहते ने बारने सहनसर कल्पंत, बारने सहनसर कल्पंत। बारने कहते ने शराब नूं। जेड़ा बंदा शराब पींदा है ना, उहदे 100 जन्म व्यर्थ जाणगे। 100 जन्म अचेत पुणे दे विच उसदे निकलणगे जो शराब पींदा होवे। तो फिर जिहड़ी अगली गल उसने कीती ने, धूमरपान असंख्यान विधियते। धूमरपान धुआं, तंबाकू का इस्तेमाल करना, तंबाकू का किसी भी रूप दे विच इस्तेमाल करना, चाहे वो तंबाकू खाना है या तंबाकू पीना है या किसी भी तरीके नाल तंबाकू का इस्तेमाल करना है, उहदे असंख्य जीवन व्यर्थ जाणगे, उसदे सुचेत नहीं हो सकेगा, अचेत पुणे दे विच निकलणगे। जिहड़ा बंदा भंग पींदा है उहदा 1 जन्म, जिहड़ा हफीम खांदा है उहदे 10 जन्म, जिहड़ा शराब पींदा है उहदे 100 जन्म, ते जिहड़ा तंबाकू का इस्तेमाल करदा है ना, उहदे अणगिणत जन्म व्यर्थ जाणगे, अचेत पुणे दे विच जाणगे, उसदे बिल्कुल अचेत पुणे दे विच। फिर उन्होंने ताड़ना भी की है बहुत। कहते ने जेड़ा बंदा धूमरपान विप्रन दान जयंती जो नरा। जेड़ा बंदा धूमरपान करता है ना, धुआं पींदा है, तंबाकू का इस्तेमाल करता है, अगर कोई बंदा उसनू दान देंदा होवे, कोई दान देंदा है उसनू, तो फिर पता है उसने की किया होवे। कहंदा दाता नरक जयंती ब्राह्मण ग्राम सूकरे। दाता नरक जयंती, जेड़ा दाता है ना, देण वाला, जिन्हें दान किया है। धूमरपान तंबाकू दे इस्तेमाल करन वाले नू जेड़ा बंदा दान देंदा है ना, कहंदे ने दाता नरक जयंती। ये जेड़ा दाता है ना, दान देण वाला, ये तो नरकां विच जाएगा, इहदा जन्म भी व्यर्थ है। ते ब्राह्मण ग्राम सूकरे, जे दान लैण वाला ब्राह्मण है, तो जे वो तंबाकू का इस्तेमाल करता हो, तंबाकू का नशा करता हो, किसी भी तरीके नाल खांदा है जां पींदा है, तो फिर कहंदा ब्राह्मण ग्राम सूकरे। वो ब्राह्मण
पिंड दा सूर बनेगा ते सूर बन के फिर सारी जिंदगी वो गंदगी खाएगा। ਉਹਦਾ जन्म इस तरह व्यर्थ जाएगा। दाता नरक जयंती ब्राह्मण ग्राम सूकरे। दाता जिहड़ा है वो नरकां दे विच जाएगा, जिहड़ा दान लैण वाला ब्राह्मण है वो पिंड दा सूर बनेगा ते सारी जिंदगी गंदगी खा के उसकी निकलेगी। इस तरह आख्या है। इसी वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज 10वें पातशाह ने तंबाकू का इस्तेमाल करना बज्जर कुरैत दे विच शामिल किया है। बज्जर कुरैत तंबाकू, सिख ने तंबाकू दे किसी भी प्रकार दे बने हुए नशे नूं हथ तक नहीं लाना है, हथ भी नहीं लाना है। इस्तेमाल करना तो दूर की गल है, हथ भी नहीं लाना है। पर अजकल असीं देखते हाँ हत्थां दे विच कड़े पाए हुए ने, उसे हथ विच तंबाकू है, उसे हथ विच बीड़ियां सिगटां पींदे पे ने, नाले कड़े भी पाए हुए ने, केस भी रखे हुए ने, दस्तारां भी बनिया हुई ने, तंबाकू भी खांदे पे, मूँह तंबाकू है। कईयां नूं मैं देखिया, क्योंकि ट्रेनां दे विच सफ़र करदे आ ना, तो कई इस तरह दे नज़र आ जाते हैं। एक तो बिल्कुल साबत सूरत, दस्तार बड़ी सोहनी सजाई हुई, उच्चा लंबा कुर्ता पजामा उसने पाया हुआ चिट्टे रंग का, तो दोनों हत्थां नाल कुछ रगड़दा पिया सी। मैं क्या पता नहीं शायद हत्थ विच खुरक आउंदी पई है, रगड़दा पिया होना है। पर जब मैं नेड़े जाके देखा तो उन्हें एकदम हाथ अपना पिछे छुपा लिया, पता लगा ये तंबाकू खांदा पिया है। जिहड़ी गल विक्रम बेताल ने की है ना कि पुत वही मर जाए जो कुल को दाग लगावे, इस तरह के बंदे तो मर ही जाने चाहिए हैं। उन्हों का मरना ही ठीक है जो पंथ नूं दाग लाउंदे हैं। इस तरह के 10वें पातशाह ने सानू सख्त हिदायत की है कि सिख ने तंबाकू नूं हथ भी नहीं लाना है। आपां साखी सुनने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जा रहे सन नीले ते सवार, एकदम अगे जाके महाराज का जिहड़ा घोड़ा सी नीला वो एकदम रुक गया। महाराज ने अड्डी भी लाई, लगाम भी खिंची, पर अगे नहीं चलता है। सतगुर घोड़े तो जब एकदम थले उतरे ना, पैर ज्यों जमीन ते रखिया तो वापस उपर चढ़ गए ने घोड़े ते सिखां ने पूछया महाराज की होया, एकदम थले उतरे हो तो फिर वापस उपर बैठ गए हो घोड़े ते। महाराज कहंदे ने अगे देख के आओ की है। जब सिखां ने जाके पता किया ना तो अगे खेतों दे विच तंबाकू बीजिया होया सी। महाराज कहंदे ने ताई ये नीला अज अगे नहीं जाता है। सतगुरु दे घोड़े नूं नीले नूं इतनी समझ है कि उस रस्ते ते भी नहीं जाना जिथे तंबाकू बीजिया होया है। अज तो लोग खाई जाते हैं, किसी नूं की परवाह, गुरु दे की वचन ने साडे वास्ते। खैर गुरमत जो सानू सिद्धांत समझाती है, गुरमत गुरु दी मत जो सतगुर सानू समझा रहे हैं। क्योंकि कई लोग कहते ने तंबाकू खाना मना किया है, शराब पीनी मना थोड़ी की है, बाणी पढ़ते नहीं हैं, विचार सुनते नहीं हैं, तो पुठे सीधे अर्थ कढ़ लेंदे ने अपने मतलब दे पे। तंबाकू मना किया है, शराब थोड़ी मना किया है। तो महाराज की बाणी पढ़ के देख लवो तुसी। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह दे बोल ने, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे बोल ने, बहुत सारे। पर साढ़े कोल तो इतना टाइम ही नहीं है कि असी बाणी पढ़ लीए। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे बोल ने, इत मद पीते नानका बहुते खटिए विकार। ऐसा नशा, ऐसी शराब पीण ने जिहदे नाल केवल विकार ही मनुख इकट्ठे कर सकता है, होर कुछ भी नहीं है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह भी कहते हैं कि जित पीते मत दूर होए, बरल पवे विच आए, अपना पराया न पछाणे, खसमो तक्के खाए।
ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਗਲਪਨ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, 95% ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲਪਨ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਢੋਂਗ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਬੰਦ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬੰਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਗੌਰਮੈਂਟ केवल दिखावा भाई, नशे बंद करो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं है। जे बंद करने होना तो एक दिन भी हो सकते हैं। अज अगर मिलटरी नूं हुक्म दे दिता जाए, जितनियां शराब दियां फैक्ट्रियां ने, तंबाकू दे कारखाने ने, सारियां ते बम मार के अज ही उड़ा दिओ, एक दिन विच ही सब कुछ बंद हो सकता है। पर बंद तो करना ही नहीं है। असी देश अज ਚੱਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਖਸਮ ਵਿਸਰੇ, दरगे मिले सजाए, झूठा मद मूल न पीछे, जेका पार वसाए। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि इस झूठे नशा का त्याग करना चाहिए। इन्हों पीण का कोई लाभ नहीं, केवल बंदा विकार ही इकट्ठे कर सकता है बस, और कुछ नहीं। इत मद पीते नानका, बहुते खटिए विकार। सिर्फ विकार ही बंदा इकट्ठे कर सकता बस, और कुछ नहीं है। मत मारी जाएगी उसकी, 100 साल तक उसकी मत सुचेत नहीं हो सकेगी। 100 जन्म उसके भ्रष्ट जाणगे जिहड़ा नशे करता है बंदा। तो महाराज सच्चे पातशाह जी नूं पुछिए कि सतगुरु जी, जे असी ये झूठे नशे नहीं करने हैं तो फिर असी किहड़ा नशा करना है। महाराज ने दस्या कि सिख ने किहड़ी शराब पीनी है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच बहुत सारे शब्द हैं इस तरह के, सिख ने किहड़ी शराब पीनी है। क्योंकि गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र बोल हैं। महाराज कहते ने, नानक झूठा मद मूल न पीछे, जेका पार वसाए, नानक नदरी सच मद पाइए, सतगुरु मिले जिस आए। जिहड़ा सच्चा नशा है ना, वो परमात्मा दा एक नाम है बस, एक परमात्मा दा नाम। गुरु नानक सच्चे पातशाह दा भी शब्द है, जद महाराज सिद्धां नूं समझा रहे सन ना, तो सतगुरां ने, क्योंकि सिद्ध भी शराब पींदे सन, नशे करते सन वो भी, तो महाराज ने कह दिता, आसा महला पहला, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावो, कर करणी कस पाइए पाठी, पवन प्रेम का पोचा, इत मद
पाठी पवन प्रेम का पोचा इत रस अम्यो चुवाइए। तो महाराज कहते ने बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे सहज रंग रच रहया अहनिस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया। महाराज कहते ने सिख ने सच्चे नाम दा बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे, नाम दा रस पीना है सिख ने तो मिलेगा फिर सहज रंग रच रहया अहनिस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया। फिर सहज की प्राप्ति हो जाएगी। शराब पीण दे नाल नशे करन दे नाल ते साडी मत भ्रष्ट हो जाती है ना, तो जे किधरे परमेश्वर दे नाम दा रस पी लिया ना तो महाराज कहते ने तैनू सहज अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, टिक जाएगा तू एक जगह ते। बाबर दी कैद विच जिस वक्त गुरु नानक सच्चे पातशाह जी गए ने, उत्थे चक्कियां अपने आप चलन लग पईयां सन। जन्म साखी ऐसा कहती है, क्योंकि उन्होंने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे अगे भी एक चक्की रख दी भी तुसी भी चलाओ इसनूं। महाराज ने मरदाने नूं आख्या मरदानिया रबाब छेड़ शब्द गायन करिए। शब्द गायन जद कीता तो इतिहास कहता कि वो चक्कियां जड़ियां ने अपने आप चलन लग पईयां सन। जिहड़ा उत्थे पहरी खड़ा सी ना पहरेदार, उन्हें जाके बाबर नूं दस्सिया भी उत्थे चक्कियां अपने आप चल रहीआं ने, असी किसे कामल पुरुष नूं कैद कर दिता वे। बाबर भी दौड़दा होया आया, देख के वो भी हैरान होया, हाथ जोड़े माफ़ी मंगी, कहंदा साडे कोलों गलती हुई है, तुसी उठो मेरे नाल चलो दरबार विच। महाराज कहंदे ने मैं कल्लिया नहीं जाना है, जितने हन सारियां नूं अगर छोड़ देवें तां मैं बाहर जाना, नहीं तो मैं बाहर नहीं जाना है। बाबर ने सब नूं रिहा कर दिता, क्योंकि उत्थे बहुत सारे राजे कई होर साधु संत पीर फकीर पता नहीं किस नूं कैद किया होया सी, किस किस नूं कैद किया होया सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जद आए तो बाबर ने एक प्याला पेश किया। महाराज ने पूछा की है इस विच? कहंदा ये आबे हयात है, अमृतमई सोम रस जिसनूं कहंदे ना। तो महाराज पुछते ने इसका की करना है? कहंदा ये पीण वास्ते है, इनू पीण नाल की हुंदा है? बाबर कहंदा इनू पीण नाल एक सरूर आ जाता है, एक मस्ती आ जाती है, आनंद आ जाता है। महाराज कहंदे ने जिन्हों पीण दे नाल शरीर ना सीधा खड़ा हो सके, आनंद कित्थों आ जाना वे। कईयां नूं यही भुलेखा पिया होया, नाम जपण वास्ते कई तरह के नशे करके जिवें सिद्ध शराब पींदे सन, पी के बैठ जाते सन, उन्होंने लगता सी भी शायद समाधि लग गई है। महाराज कहते ने इहदे पीण नाल की आउंदा वे, फिर कितनी देर तक इसका असर रहिंदा है? कहंदा तकरीबन कोई 4 घंटे असर रहेगा। फिर की करदे हो? एक प्याला होर पी लैने आ, जद उसका नशा उतर जाता एक प्याला होर पी लैने आ, फिर इस तरह ही पींदे रहने आ। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने तुहाडा ये नशा तुहाडा ये रस 4 घंटे बाद उतर जाता है, पर मैं जिहड़ी शराब पीती है ना, एक बारी पीती है तो उहदा नशा फिर कदी उतरदा ही नहीं है, फिर कदी उतरदा ही नहीं है। पोस्त भंग हफीम मद उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने उस प्रभु दे सच्चे नाम दी ऐसी शराब मैं पीती है, एक बारी पी लई फिर कदी नशा उतरदा ही नहीं है, फिर हर वक्त 24 घंटे सरूर विच आ सी। तू ते ये झूठे नशे करदा पिया है। ताई ते भगत रविदास जी ने कहा कि अगर शराब जिहड़ी है वो गंगा दे पानी दी भी बनी होवे ना तो उसनूं भी नहीं पीना चाहिए है, क्योंकि गंगा दे पानी नूं पवित्र मन्निया गया है। भगत रविदास जी कहंदे ने कि सुरसरी सलल कृत बारनी रे,
सुरसरी सलल कृत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग। भावें गंगा दे पानी दी भी शराब बनी होवे तो संत जन जिहड़े रब दे भगत ने ना, नाम जपण वाले ने, वो कदी भी उसका इस्तेमाल नहीं करते, वो कदी उसनूं पींदे नहीं हैं, हत्थ भी नहीं लाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बहुत सारे बचन कहे हैं। भाई नंद लाल जी के बचन ने, रहतनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ। भाई साहब दे बोल ने, कुट्ठा हुक्का चरस तंबाकू गांजा टोपी ताड़ी खाकू, इनकी और न कबहू देखे रहतवान सोई सिंह बिसेके। भाई साहब ने सारियां दा जिक्र किया है। जिहड़ा गुरु दा सिख है ना, वो इन सारियां चीज़ां वल वेखदा भी नहीं है। किहड़ियां चीज़ां? कुट्ठा हुक्का चरस तंबाकू गांजा टोपी ताड़ी खाकू, इनकी और न कबहू देखे रहतवान सोई सिंह विसेके। जेड़ा गुरु दा सिख है ना, वो इन्हां चीज़ां वल तकदा भी नहीं है, वेखदा भी नहीं है, उन्हें इन्हां वल वेखना भी नहीं है। फिर एक और बोल मैं तुहाडे सामने रख देना तो फिर समाप्ति करिए, समा भी हो चलिया। पर नारी जुआ असत चोरी मदरा जान, पांच ऐब ये जगत में तजे सो सिंह सुजान। जेड़ा गुरु दा सिख है ना, वो इन्हां पंज चीज़ां दा त्याग करदा है, कदी इन्हां वल वेखदा भी नहीं है। इन्हां पंज चीज़ां दा किहड़ा? पर नारी जुआ असत चोरी मदरा जान, ये पंज चीज़ां ने। पराई स्त्री है, झूठ है, फिर शराब है, कुट्ठा है, इन्हां चीज़ां वल सिख ने वेखना भी नहीं है। पर नारी जुआ असत चोरी मदरा जान, पांच ऐब यह जगत में तजे सो सिंह सुजान। जेड़ा इन्हां चीज़ां दा त्याग करदा है ना, वो गुरु दा समझदार सिख है, वो सूझवान सिख है। चलो मैं समाप्ति करा, हुण समा हो गया। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने, अंबली न अमल तजत जूं धिकार किए, दोख दुख लोक वैद सुनत छकत है। अमली बंदा कदी भी नशे का त्याग नहीं करता है, भावें उदा सब कुछ बर्बाद हो जाए, लुटिया जाए, बच्चे रुल जान, कारोबार चला जाए, फिर भी वो नशे का त्याग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उदा उठना बैठना लैन देन खान पान, उदी जिहड़ी संगत है ना, वो सारी अमली पुरुषों की संगत है। ते उस संगत ने ऐसा असर पाया, भावें सब कुछ चला जावे पर फिर भी अमली अमल का त्याग नहीं करता है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि संगत का असर है। मैं फिर दोहरा दियाँ कि दो गल्लां भाई साहब ने इहदे विच समझाउण दी कोशिश की है। एक तो मनुख दा अपनी संगत नाल कितना प्रेम है, दूसरा संगत दा मनुख दे उत्ते कितना असर पैंदा है, कितना असर है मनुख दे उत्ते। भाई साहब चौथी पंक्ति दे विच जो गल कर रहे हैं ना, बड़े ध्यान नाल सुनना। भाई साहब कहंदे ने, अधम असाध संग छाड़त न अंगीकार, गुर सिख साध संग छाड़ क्यों सकत है। अधम कहंदे ने नीच लोकां नूं। ये जिहड़ी गिनती भाई साहब ने कीती है ना, ये सब नीच लोग हैं। जैसे चोर है, डाकू है, बेसवागामी है, जुआरी है, शराबी है, नशे करन वाले ने। भाई साहब कहंदे ने, ये सब नीच लोग हैं। अधम असाध संग छाड़त न अंगीकार। जिस तरह इन्हां नीच लोकां ने अपनी संगत का त्याग नहीं किया है,
ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੇਸਵਾ ਗਾਮੀ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੁਆਰੀ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦਾ ਨਾ, गुरु का सिख गुरु के शब्द वास्ते तड़पे, सत संगत वास्ते तड़पे। अंदर तड़प होवे, मैं कथा सुननी है, कीर्तन सुनना है, मैं पाठ करना है, मैं नितनेम करना है, मैं अमृत वेले उठना है, मैं अमृत छकना है, मैं रहत रखनी है। गुरु के सिख दा इन सारिया चीज़ों के नाल इतना प्रेम होना चाहिए जितना उन्हां नीच लोगों का अपनी संगत नाल प्रेम है। भाई साहब दृष्टांत दे के समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे ने? क्योंकि सत संगत ही सब कुछ है। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाए, सूके काष्ट हरिया। सत संगत विचों सानू सब कुछ मिलना है, पर जे संगत नाल प्रेम ना होया साडा तो फिर कुछ भी नहीं मिलना है। भाई साहब कहंदे ने इतना प्रेम होवे सत संगत दे नाल, इतना प्रेम होवे। बहुत सारे विद्वानां दे बोल होर सन। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं साकी आख्या वे, शराब पिलाण वाला। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने निरंकार नूं साकी आख्या वे, शराब पिलाण वाला। नशे तो करने हैं पर वो नशा नहीं करना जिहदे नाल मत मारी जावे, वो नशा करना है जिहदे नाले साडी मत सुमत विच बदल जावे, वो नशा करना है। बड़े ही सुंदर बोल हैं। हमराज एक शायर होया, आपां अरदास करिए गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच। हमराज एक शायर होए ने, उन्हें गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं साकी आख्या है। साकी शराब पिलाण वाला। पता है वो की कहंदा है? वो लिखदा है, कहंदा कि उठ साकिया नानक तो उठ, रहमत दा भर के जाम दे। उठ साकिया नानक तो उठ, रहमत दा भर के जाम दे। हर घड़ी दे, हर पहर दे, हर सुबह दे, हर शाम दे। कहंदा हर वक्त मैनू अपने नाम दी शराब पिला, जाम भर भर के मैनू दे। कितनी दे? हर घड़ी दे, हर पहर दे, हर सुबह दे, हर शाम दे। हर वक्त अरदास करिए कि हे सच्चे पातशाह अपने नाम दी दात साडी झोली विच पा। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।